Hey hello everyone, welcome back again to our YouTube channel with the next class of class 10th mathematics. In part 1 we completed the first initial phase of the chapter, that was the definitional or the basic conceptual area. See, this chapter we have divided into three parts. Part 1 the basic part, second part being the further classification or the relationship between zeros and the coefficients of the polynomial. In this particular session we are going to understand the relationship of zeros with their coefficients along with the division algorithm. So today's our core area will be focusing on two concepts, the relationship and the division algorithm. The whole chapter we will go in three phases. Part 1 we completed and it is on the channel, on the I button or the description link, the basic or definitional area. Now the relationship of zeros or the coefficients, and in the last phase we will be picking the miscellaneous problems, very important for your board exams. So without wasting any time, do subscribe our channel and do share with your friends. Let's start. Relationship between zeros and coefficients of the polynomial. In this particular session, we will be focusing on two concepts, the relationship between the polynomials and its coefficients and the division algorithm. Starting with the relationship of the polynomials, see, we will be discussing here two polynomials. One is quadratic polynomial, chapter is based on that, and another we will be discussing the cubic polynomial. First, seeing the quadratic polynomial, standard format of the quadratic polynomial was ax square plus bx plus c, and if it gets satisfied it will be equal to 0. First priority or the basic condition for being a 0, that the equation will satisfy to 0, then only the required number will be the 0 of the polynomial. आपकी स्क्रीन पर एक इमेज फ्लैश हो रहा होगा जिसमें जीरोस ऑफ पोलिनोमियल का लास्ट वीडियो का एक स्क्रीनशॉट होगा. उसमें देखिए जीरोस ऑफ पोलिनोमियल वो वैल्यू जिसकी वजह से इक्वेशन आपकी जीरो हो जाए. एनी पर्टिकुलर वैल्यू either non-negative or negative value which makes the equation to 0 will be the zeros of that polynomial. The standard format for quadratic polynomial is ax square plus bx plus c, and which will be equal to 0, then only the zeros can be found out. How zeros are found out? 9th में याद करिए, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हुए हम लोग निकालते थे. कैसे, वो एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, लेकिन पहले इसके रिलेशनशिप को समझ लेते हैं. लेट्स अज्यूम से अल्फा एंड बीटा आर टू zeros of the polynomial and saying it as px of px. Then sum of zeros equals to minus b upon a, or writing it as coefficient of x minus upon coefficient of x square. ये है sum of zeros, relationship of sum in the given polynomial px. सम के लिए हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहां पे अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ zeros, that will be the constant term upon the coefficient of x square, writing it as constant term upon coefficient of x square. यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा. दो एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कैसे इस रिलेशनशिप को आप वेरीफाई करेंगे, कैसे इसका आप मेजर करेंगे. लेट्स अज्यूम एनी इक्वेशन. लेट्स से px x square plus 7x plus 12. Let's say it as a polynomial. Here first we will do the middle term split. Now we have the condition plus here and to make 7. So that will, if you want to check how to do that, take the LCM of the constant term. 4 on 3, and this makes 4 plus 3 7. We got our answer. So now
x square plus 4x plus 3x plus 12, which will be taking x common, so x plus 4, and from here plus and 3, so again x plus 4, so x plus 4 and x plus 3 will be our two zeros. Let's say now sum of zeros, checking from the equation we have minus b upon a, compare it with our standard equation that is ax square plus bx plus c. Now b we have 7 upon a we have 1, and as per the relationship there should be a minus. We got this from our direct equation. Now checking with the formula or the zeros we found out, one is minus 4, another one is 3, coefficient of x square 1. This implies to 7 upon 1 and the minus of the relationship which is equals to this. Now both our relationship are satisfied. So this is the relationship of sum of zeros of the polynomial px. Sum of zeros ऐसे हुआ. अगला चेक करते हैं प्रोडक्ट ऑफ zeros. According to the relationship c upon a, checking here c 12 and a being just 1, checking from the zeros alpha and beta, so 4 3s are 12 upon 1. We again got the same, and that is the satisfaction of your relationship of coefficient with its zeros. First we have to find sum of zeros minus b upon a, and then product of zeros, that is c upon a. Either you go with the standard equation comparison or by middle term splitting, find first two zeros and then do the relationship verification. So this was all about zeros and its verification in the format. I hope ये clear है. एक और एग्जांपल लेके चेक करते हैं कैसे वो होगा. Let's say px x square minus 2x minus 8. इस पर वेरिफिकेशन चेक करके देखते हैं कैसे हमारा आंसर आएगा. अगेन द मिडिल टर्म स्प्लिट चेक कर लीजिए कैसे. 2 4 2 1 4 2. Now we have to do the minus. We have to check the last digit along with its sign. यहां पर हमारे साथ प्लस था तो हमारा जो आंसर आया हमने प्लस करके निकाला 4 + 3, एंड उसका फिर प्रोडक्ट ऐसा अलग चेक किया. यहां पर आपके साथ माइनस साइन है, दैट मीन्स यू हैव टू पुट कैलकुलेट दिस वैल्यू यूजिंग माइनस और डिफरेंस. सो 4 - 2 becomes 2 and 4 2s are 8. Both conditions satisfied. So writing here px square is equal to x square. Our answer should be in minus, so the bigger value 4 wrote in minus and plus 2x. So plus minus minus, answer will be in minus. Again minus 8, taking common from here only x, so x minus 4, from here plus 2, so plus minus minus 4. Why plus? Just to maintain this equality we have taken plus here. You can take either minus, but then your answer will differ from the conditions. So here our two zeros will be one x minus 4 and another x plus 2. Let's say this will be the alpha and this will be the beta. Checking the zeros, first sum as per standard equation ax square plus bx plus c माइनस बी अपॉन ए लिख देते हैं यहां पर, माइनस बी अपॉन ए. आवर वैल्यू इज ऑलरेडी इन नेगेटिव, सो राइटिंग दिस अपॉन 1. यहां पे आपका आंसर आएगा 2. सिंपल. अगर चेक करें जो हमारे जीरोस आए हैं, वन इज -4, अनदर इज प्लस, एंड द वैल्यू शुड बी इन
negative according to relationship. So here plus minus minus 2 and minus minus plus. Our answer is same as we did. Then we have product of zeros. That too C upon A. Constant term minus 8 upon A. Checking with the zeros, minus 4 into 2. That becomes minus 8. So the equation here also satisfied. These two examples I hope clear. This is how you are going to find your zeros of the polynomial and verify its relationship with the sum and its product. बहुत सिंपल. सबसे पहले जो भी इक्वेशन आपको दी हुई है उसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर लीजिए, आपको दो जीरोस फाइंड हो जाएंगे. उसके बाद एज पर द रिलेशनशिप गिवन सम ऑफ जीरोस और उसके प्रोडक्ट के साथ अपने रिलेशनशिप को आप शो ऑफ कर दीजिए. पहला कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. बस यहां बात याद रखिएगा ये माइनस में रहेगा. एंड जब प्रोडक्ट की बात आए तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. सिंपल. ये था रिलेशनशिप ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ इट्स जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ इट्स टर्म. आई होप बहुत सिंपल था, बहुत क्लियर था. नेक्स्ट, इसके कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स में टिपिकल क्वेश्चंस जो ज्यादातर एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो नेक्स्ट पार्ट में जरूर मिलेंगे. तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा. थर्ड पार्ट में इसके सारे जो एक हायर लेवल के क्वेश्चंस हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी कंपैरिजनली ज्यादा होती है पूछे जाने की, वो आपको वहां मिल जाएंगे. मूविंग ऑन दिस वीडियो, अगला आपका है कंसेप्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का. So moving further, now we look on the cubic polynomial and its relationship with the zeros and its coefficients. See, cubic polynomial, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो होगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन कह लो, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d. ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन दी गई है. इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के थ्रू हम अपने रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे. कैसे? लेट्स अज्यूम या लेट्स से 3 zeros, 1 alpha, another beta and then gamma. These three will be the zeros of the polynomial, cubic polynomial. अल्फा, बीटा एंड गामा. हमारे 3 जीरोस हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा, जिसमें रिलेशनशिप जो उसकी दी गई है हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मिडिल टर्म स्प्लिट करके निकाला था. यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू और एक कोई आप कॉमन निकाल के इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप देना पड़ेगा. इसका डिस्कशन अभी आगे जब हम डिवीजन एल्गोरिथम इसकी चेक करेंगे तब करेंगे. फिलहाल के लिए इसकी रिलेशनशिप क्या है वो देख लेते हैं. अगर बात करें सम की, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, देन दैट विल बी माइनस बी अपॉन ए. और अगर सिंपल टर्म्स में लिखूं तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अल्फा बीटा या जो मल्टीपल प्रोडक्ट रिलेशन थी वो पॉसिबल नहीं था, बट क्यूबिक पॉलिनोमियल में वो भी पॉसिबल होगा. कैसे? कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब. एंड लास्टली अगर प्रोडक्ट की बात करें, अल्फा, बीटा एंड गामा, दैट विल बी द माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन a कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब. ये 3 रिलेशन आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल में पूछी जा सकती हैं. हालांकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के चांसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं पूछे जाने के. उसके क्वेश्चंस भी अपनी एक्सरसाइज में ज़्यादा दिए हुए हैं. हाँ, क्वेश्चंस के थ्रू अगर आपको NCERT सॉल्यूशन चाहिए,
हमने पूरी एनसीईआरटी सोल्यूशन अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है, आप जब चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे मिल जाएगा, टैग भी कर देंगे, आप इजीली वहाँ से उसको पूरी मैथ एक्सेस कर सकते हैं। नॉट इवन जस्ट मैथ्स, Hindi, English, social, all notes have been provided on our Telegram channel. So do join that and subscribe the channel as well. आगे देखते हैं, ये थी हमारी एक क्यूबिक पोलिनोमियल की रिलेशनशिप। कई बार क्वेश्चन आपसे कह सकता है कि जीरोस आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं और इक्वेशन आपको बनाने को दी गई है। मीन्स यू आर गिवन विद द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एंड यू हैव टू फॉर्मुलेट द गिवन पोलिनोमियल, आइदर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल। अब यहाँ से इस आज की पर्टिकुलर सेशन में दो टॉपिक रह जाते हैं, एक अगर जीरोस दिए हुए हैं तो कैसे हमें कोई पोलिनोमियल क्रिएट करनी है, एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट डिवीजन एल्गोरिदम। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, हमारी क्यूबिक पोलिनोमियल रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। एक ax³ + bx² + cx + d करके इक्वेशन दी थी जनरल, जिसको हम कंपेयर करेंगे या जिसके हम रिलेशनशिप निकालेंगे तो 3 जीरोस एज्यूम किए, अल्फा, बीटा, गामा। क्यों एज्यूम किए? क्योंकि जितनी हाईएस्ट पावर उस इक्वेशन में उतने जीरोस, मींस द हाईएस्ट पावर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ जीरोस इन दैट पोलिनोमियल। यानी कि यहाँ पे 3 हाईएस्ट पावर थी तो हमें 3 जीरोस मिलेंगे, अल्फा, बीटा एंड गामा। उसका पहला रिलेशनशिप है, अगर सम की बात करें, -b/a, दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। अच्छा, इन सब बातों में कॉमन बात ये थी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में भी कि जो कांस्टेंट टर्म, जो डिनोमिनेटर था वो फिक्स था, a। आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में चेक कर लिए, सम -b/a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x³, a रिमेन्स द कांस्टेंट एवरीवेयर। तो हमें सिर्फ याद क्या करना है, ऊपर वाले न्यूमरेटर को आपको समझना होगा, याद भी नहीं करना। एक बार आप समझ लीजिए कंसेप्ट्स के साथ, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं रहेगी। सम क्या था, -b/a और माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³ एंड देन अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा was c/a means coefficient of x upon coefficient of x³ and lastly the product of the zeros alpha beta gamma that was -d/a constant term upon coefficient of x³ with the minus sign। जब भी प्रोडक्ट की बात आई है, आइदर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल, वहाँ पे कांस्टेंट टर्म को ही अपॉन में रखा गया है। यहाँ पे डिफरेंस ये राइज हुआ कि यहाँ माइनस में है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में वो पॉजिटिव टर्म थी। आई होप इतना क्लियर है अभी तक का, बहुत सिंपल चल रहा है। नेक्स्ट अब बात करते हैं, अगर हमें जीरोस दिए हुए हैं और हमें एक इक्वेशन फॉर्म करनी है, बहुत सिंपल है, देखते हैं। सो नाउ वी हैव जीरोस गिवन है एंड हमें उसकी इक्वेशन बनानी है। जीरोस दिए हैं, इक्वेशन बनानी है। सबसे पहले बात करते हैं, अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो पूछेगा तब x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बस, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये है पहली। अगर इसको सिंप्लीफाई करके आपको बताऊं, यहाँ पर हमने एज्यूम किए हुए हैं अल्फा एंड बीटा, जीरोस हमने एज्यूम किए हैं, एक अल्फा एक बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये इक्वेशन आपको बनानी है। सिंपल। ये कब? जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अल्फा बीटा अलग अलग आपको दिए हुए हैं, जीरोस आपको प्रोवाइडेड हैं, तब आप ऐसे इक्वेशन फॉर्मेट करेंगे। बात आती है अगर क्यूबिक पोलिनोमियल पूछी जाए तब, x³ क्यूबिक है तो क्यूब से स्टार्ट होगा, माइनस सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x माइनस प्रोडक्ट अल्फा बीटा, सिंपली x³ माइनस सम ऑफ द जीरोस
plus the given multiple of the zeros minus product of all the zeros combined. This is the equation for cubic polynomials in the requisite form. Quadratic polynomial x square minus sum of zeros plus product of zeros. Cubic polynomial x cube minus sum of zeros plus alpha beta beta gamma plus gamma alpha plus product of zeros. आई होप क्लियर है. ये दो इक्वेशन हमें ऐसे बनानी है. एक एक एग्जाम्पल की मदद से आपको समझा देते हैं, चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी. 3 टाइप के क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जा सकते हैं. सिंपली आपको ज़ीरो दे दे या उसका प्रोडक्ट आपको दे दे. जैसे पहले में आप देखिए, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इफ़. बहुत ज़रूरी शब्द है, आपको ये पढ़ना. ज़ीरोज़ आर, यहाँ पर ज़ीरोज़ अलग अलग दिए हैं, मतलब आपको अल्फ़ा अलग दिया है, बीटा अलग दिया है, अल्फ़ा अलग दिया है, बीटा अलग दिया है, अल्फ़ा अलग दिया है, बीटा अलग दिया है. बार बार इस बात पे जोर इसलिए दे रहा हूँ कि आपको ये पकड़ना बहुत ज़रूरी है कि ज़ीरोज़ दिया है या सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया हुआ है, बिकॉज दिस विल क्रिएट अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन द गिवन क्वेश्चन. सो हमें इक्वेशन क्या बनानी है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा. आइए, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस अल्फ़ा 2 प्लस माइनस माइनस 6 बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा. इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4x minus 12. This will be our equation when zeros specifically given. Separate specific zeros are provided, then this format will be applied. आपको सबसे पहले अलग अलग उसको प्लॉट करना होगा. सिंपल. मूविंग अहेड, अगर आपको टाइप 2 में देखिए, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इफ सम ऑफ जीरोज इज 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12. अगर बात करें, इसमें क्या दिया है? अल्फ़ा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है डायरेक्ट, एंड प्रोडक्ट भी डायरेक्टली आपको दिया हुआ है. यहाँ हमें कैलकुलेट करना पड़ा था, बट यहाँ आपको पूरी स्पेसिफिक वैल्यू दी हुई है. इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा. पुटिंग वैल्यूज़ एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस अलग अलग मत लिख दीजिएगा, 8 प्लस 12 वो सम दिया हुआ है, उधर प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो सम डायरेक्टली 8x लिख देंगे एंड प्रोडक्ट प्लस प्रोडक्ट ऑल टुगेदर गिवन. सो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, दिस विल बी आवर इक्वेशन. आई होप क्लियर है. बहुत सिंपल था. हमें दोनों चीज़ें दी हुई हैं. एक, जब सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया हुआ है, दिस वे यू हैव टू अप्लाई. अगर आपको सिर्फ ज़ीरोज़ दिए हुए हैं अलग अलग करके, देन दिस वे यू हैव टू मूव ऑन. यहाँ पे एक अल्टरनेटिव और कर सकते थे आप. पहले इसका अलग खुद ही अल्फ़ा प्लस बीटा कर लेते, दैट मीन्स 2 माइनस 6, बोले माइनस 4 निकाल लिया, एंड अल्फ़ा बीटा 2 इंटू माइनस 6, ये आप स्पेसिफिकली अलग निकाल सकते थे. उसके बाद डायरेक्टली आप इस इक्वेशन में प्लॉट कर देते. बात तब भी वही जानी थी, या इक्वेशन में उठा के वैल्यू आपने प्लॉट कर दी, इक्वेशन तब भी वही बनी. सिंपल. यहाँ चेकआउट करते हैं लास्ट टाइप, ये टाइप 3, जहाँ पे क्यूबिक पोलिनोमियल आपसे पूछे. क्वाड्रेटिक के दो ही तरीके, या आपको ज़ीरो दे के पूछेगा या आपको सम दे के पूछेगा. इसके अलावा तीसरा कोई तरीका है नहीं जैसे वो आपसे कुछ भी पूछ सके. बहुत सिंपल था. आई होप क्लियर होगा. देन क्यूबिक पोलिनोमियल, जहाँ पे आपको ज़ीरोज़ प्रोवाइडेड अलग अलग दिए होंगे. अच्छा, मन में एक डाउट आ सकता है यहाँ पे कि सर कहीं ऐसा ना दे दे हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़. यहाँ पर एक जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, सम दिया जा सकता है, प्रोडक्ट दिया जा सकता है, बट जो मल्टीपल इन ज़ीरोज़ का है वो प्रोवाइड करना आपको थोड़ा सा टिपिकल होगा. अदरवाइज आपको सब स्पेसिफिकली दिखाया होगा किसी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज़ दिस,
उसके बाद अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, वैल्यू इज़ दिस, एंड लास्टली अल्फ़ा बीटा गामा का प्रोडक्ट ये है। तब आपको जब स्पेसिफिक हो तब तो हद से ज़्यादा सिंपल है कि आपको सिर्फ उठा के वैल्यूज़ प्लॉट करनी है। अदरवाइज़ अभी तक जो सिनारियो क्रिएट रहा है, जो देखा गया है, वो यही कि आपको ऐसे ज़ीरोज़ दिए हुए हैं, बस लाइन ज़रूर पढ़ते रहिएगा। मैथ्स में अगर आप क्वेश्चन नहीं पकड़ते हैं तो आप गलत ज़रूर कर बैठेंगे। यहाँ पर आपको स्पेसिफिक ज़ीरोज़ दिए हुए हैं। इक्वेशन इसकी फॉर्मेट करिए, एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा एक्स माइनस प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा गामा, ये एक साथ। क्लियर? वैल्यूज़ प्लॉट करते हैं। एक्स क्यूब के साथ कोई नहीं है, बेचारा अकेला, माइनस अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा एक्स क्यूब माइनस 3 2 -1 प्लस 4 that we will plus 3x square plus -6 plus minus -12 plus 8 and here 4 3 is 12 12 2 is 24 minus plus 24 और यहाँ पे ये x रहेगा। इक्वेशन जो बनी एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 18 माइनस 10x and that becomes plus 24. So this is our required equation of क्यूबिक पोलिनोमियल। थोड़ी जगह की शॉर्टेज थी इसलिए वो नीचे जाना पड़ा ज़्यादा, अदरवाइज़ इसी वे में आप पूरा सॉल्यूशन करेंगे। पहला था जब आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनानी थी जहाँ पे आपको ज़ीरोज़ दिए हुए थे अलग, नेक्स्ट जब आपको सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट दिया हुआ था, एंड लास्ट जब आपको क्यूबिक पोलिनोमियल निकालनी थी। सिंपल, यही आपको पूरी एक्सरसाइज में पूछा गया है। ज़ीरोज़ निकाल के बताइए, सम ऑफ ज़ीरोज़ दिए हुए हैं, खाली ज़ीरोज़ दिए हुए हैं, ज़ीरोज़ निकालना है। अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पूछा हुआ है तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके निकालिए, अगर क्यूबिक पोलिनोमियल दी है कोशिश करिए कॉमन निकाल के सॉल्व कर दीजिए, अदरवाइज़ नहीं होता है तो आप उसको डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। वेरी सिंपल। मूविंग अहेड, डिवीजन एल्गोरिथम, लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। अगर अभी भी कोई डाउट है आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, और विजिट टू आवर टेलीग्राम चैनल और राइट अस ऑन इंस्टा, वेरेवर यू फील लाइक यू कैन कॉन्टैक्ट अस एंड वी आर रेडी फॉर योर सर्विस। मूविंग अहेड ऑन दिस वीडियो ऑन लास्ट पार्ट, दैट इज डिवीजन एल्गोरिथम। मूविंग ऑन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, अब हम बिल्कुल लास्ट कंसेप्ट कह लो इस चैप्टर का, लास्ट थ्योरेटिकल पार्ट जो इसमें रह गया था, डिवीजन एल्गोरिथम। इसके अगले पार्ट में जब हम मिलेंगे तो वहाँ पे आपको 5 ऐसे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो इस चैप्टर के क्रक्स माने गए हैं। मतलब जो वो 5 क्वेश्चन आप सीख लीजिए, आपको पूरा पोलिनोमियल्स आ जाएगा। बट दैट विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो कैसे मिलेगी आपको? सो सब्सक्राइब and press the notification bell so that you get the notification as and when the video gets uploaded. Till then, stay tuned with YouTube and on our Telegram channel because all the updates will be posted there. कब आ रही है नई वीडियो, कब नहीं आ रही है, क्या नोट्स अपलोड किए गए हैं, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या कुछ भी ऐसा नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट अपडेट देना होगा तो वो टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा। सो माय अर्नेस्ट रिक्वेस्ट वुड बी टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एज अर्ली एज पॉसिबल। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल।
सो डिवीजन एल्गोरिदम और द डिविजनल फंक्शन कैसे, जैसे आप अभी तक डिवीजन सिस्टम समझते थे सिर्फ उसी फॉर्मेट में है, बस एक इसमें fx और gx का कंसेप्ट बढ़ जाता है। क्या, इफ़ fx एक कोई पॉलिनोमियल fx है एंड पॉलिनोमियल gx आर एनी टू पॉलिनोमियल्स, कोई भी दो पॉलिनोमियल दी हुई हैं विद gx, जहाँ पे जो gx है वो 0 के इक्वल नहीं है, बस मतलब एक यहाँ पे स्पेसिफिक कंडीशन दे दी कि जो gx होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा, देन वी कैन फाइंड एनी पॉलिनोमियल। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, फाइंड करेंगे कुछ पॉलिनोमियल्स को, कौन सी होंगी, जो वो qx, जिसको हम यहाँ पे क्वेश्चन रेफर करेंगे, एंड rx जो हमारी रिमाइंडर होगी। डिवीजन में यही तो होता है, आपका एक डिविडेंड, एक डिवाइजर, एक क्वेश्चन, एक रिमाइंडर। ये आपका मान लीजिए डिविडेंड हो जाएगा, मान के लीजिए यही होगा, ये आपका डिवीजर होगा, qx will be the question, rx will be the remainder, such that कैसे, fx equals to question x into divisor means gx plus remainder x, where ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लाइन बनती है। क्यों, rx जो होगा वो 0 के इक्वल हो सकता है, मे बी रिमाइंडर हो सकता है 0 आ जाए, हो सकता है नहीं भी आए, कंडीशंस बोथ, और डिग्री ऑफ rx विल बी लेस देन डिग्री ऑफ gx, जो gx होगा आपका डिवाइज़र होगा, उसकी डिग्री हमेशा रिमाइंडर से बड़ी होगी। इवन आप बच्चों वाली डिवीजन याद कर लीजिए, 2 से 15 को डिवाइड करना है तो जब रिमाइंडर आता था 1, वो 2 से हमेशा लेस होता था, मतलब रिमाइंडर कब बचेगा, जब आपके डिवाइज़र से वो छोटा हो जाए, क्योंकि उसके आगे वो और डिवाइड नहीं हो सकता। तो इसमें कोई नई बात तो है नहीं कि हमने यहाँ लिख दिया कि डिग्री ऑफ rx इज़ ग्रेटर देन, सॉरी इज़ लेस देन डिग्री ऑफ gx, जैसे आप एक नॉर्मल डिवीजन में सीखते थे वो यहाँ पे दिया हुआ है। इसको अगर सिंप्लीफाई करूँ तो इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डिविडेंड fx इज इक्वल्स टू क्वोशिएंट qx इंटू डिवाइज़र gx प्लस रिमाइंडर rx। समराइज फॉर्म में ये आपकी वो ऊपर एल्गोरिदम दी हुई है। अगर ये लाइन आपको समझ में आ जाती है तो आपकी डिवीजनल एल्गोरिदम यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब ऐसे तो नहीं सर ने करा दिया इतना ही हो गया, एक क्वेश्चन के थ्रू आपको पूरा बाकायदा समझा के दिखाएंगे कि कैसे ये एल्गोरिदम वर्क करती है और कैसे आपको इसको फाइंड आउट करना है। देखिए, डिवाइड 2x² माइनस एक्स प्लस 3 बाय x माइनस 2, मतलब ये हमारी हो गई fx, ये हो गई gx, डिविडेंड डिवीज़र मिल गया भाई। डिवाइड करना है मतलब हमें क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन तो फाइंड होगा ही होगा, इफ़ बचता है तो रिमाइंडर x, हमें ये दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। चलिए, राइटिंग x माइनस 2 एंड जो डिवाइड करना है डिविडेंड अपना 2x² माइनस एक्स प्लस 3। यहाँ पर जो डिवाइड करने का सिंपल रूल आपको बता देता हूँ, फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म आप बनाते हुए चलते रहना, अपने आप सारी टर्म्स बनती हुई चली जाएंगी। कैसे, यहाँ x है, यहाँ लाना कितना है x², हमें रिक्वायरमेंट है एक x की, जो इससे मल्टीप्लाई करेगा स्क्वायर बन जाएगा, बना दिया। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, लाना हमें 2 है तो 1 2 ज़ा 2, बना दिया 2। जो साइन यहाँ है वही साइन वहाँ होना अनिवार्य है। यहाँ प्लस है सर, पहले से ही प्लस है, बस दैट्स इट। अब आपको आगे फॉर्म 2x माइनस 2 मीन्स माइनस 4x, 2 2 ज़ा 4x, माइनस का सॉरी डिवीज़न का माइनस लगा दिया, माइनस माइनस ये कैंसिल, यहाँ प्लस यहाँ माइनस का, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, यानी कि आपका आंसर आएगा 3x इन प्लस फॉर्म। वाई, दिस माइनस बिकम्स प्लस, और इसका साइन चेंज होकर अब बन गया प्लस का 3x। तो 4 1 माइनस हुआ तो 3 बचा,
प्लस उधर का उतार लीजिए वैल्यू को 3x, सिंपल। आगे यहाँ x है, यहाँ लाना भी x है, ठीक है सर, मतलब यहाँ हमें कुछ नहीं लिखना। यहाँ 1 है, यहाँ लाना 3 है, मीन्स वी हैव टू राइट 3। यहाँ प्लस है सर, यहाँ भी प्लस लगा दिया। जो साइन यहाँ आपको मिल रहा है वही साइन आप प्लॉट कर दीजिए, बहुत सिंपल चलेगा। मल्टीप्लाई करते हैं सर, 3x प्लस माइनस -6, डिवीजन का माइनस लगा दीजिए, प्लस माइनस ये तो भाई लुढ़क गया, माइनस माइनस प्लस एंड बोथ आर प्लस, सो आंसर विल बी इन प्लस एंड दिस इज आवर रिमाइंडर। ये हमारा rx हो गया, ये हमारा qx है, ये तो वैसे ही fx थी, सॉरी ये हमारा gx था डिवाइज़र, ये निकला जो क्वेश्चंट। लास्ट पार्ट में कहा है वेरीफाई द एल्गोरिदम, एल्गोरिदम वेरीफाई करके दिखाइए। आइए साहब वेरीफाई करते हैं। एल्गोरिदम पहले लिख लेते हैं, fx इज इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस rx। fx क्या है हमारी 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 3, gx क्या है x माइनस 2, qx कितना है 2x प्लस 3 एंड रिमाइंडर rx जो है 9। चलिए साहब सॉल्व करते हैं। x 2x प्लस 3 एंड माइनस 2 2x प्लस 3 एंड लास्टली प्लस 9, 2x स्क्वायर प्लस 3x 2 to the 4 माइनस 4x प्लस माइनस -6 प्लस 9, so it becomes 2x square plus minus x plus 3, both are equal। हमारी एल्गोरिदम सेटिस्फाई हो जाती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डिवीजन एल्गोरिदम, वेरी सिंपल, वेरी इजी। जैसे आप नॉर्मल डिवाइड करते थे उसी लहजे में, सेम उसी पैटर्न में आपको यहाँ भी करना है। बस यहाँ पर आपको एक x जो वेरिएबल x का सिस्टम है वो बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज़ कुछ भी चेंजेस नहीं हैं। आई होप क्लियर है। सो हियर वी एंड दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके मिसलेनियस प्रॉब्लम्स के साथ, जो एक एडवांस लेवल क्वेश्चंस होंगे और जिसकी प्रोबेबिलिटी प्रायिकता ज़्यादा होती है बोर्ड्स में पूछे जाने की। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।